Okay, so I'm opening this DPP number. I think first DPP of the capacitor we did complete, right? First DPP, any doubt? Aman, कैपेसिटर की फर्स्ट डीपीपी No, sir. any doubt in the first dpp of the capacitor? should I show on the screen और आपके पास है वो अभी? Prashant, you can send your doubts from any book, NCERT, SL Arora, जो भी है, आकाश पताल, प्रदीप, दिनेश, महेश. But from the second chapter, I want to close the second chapter so that we can have the test of capacitor plus potential both. किए questions, Vineet? NCERT से कर रहा था मैं. Yes, sir. The question First DPP 9. we completed. Yes. So question number 9 of DPP2. Question number 9 of DPP2. Okay, I assume that you all are having this DPP. अगर नहीं है तो फिर just give me 1 minute. I will open it here also. Question number 9, sir. 9. Okay, yeah. Question number 9 from DPP2. Please open. के पास भी group में है questions. Please open it. Okay, so this question is a practical situation of the tuning circuit of capacitor. कैपेसिटर की ट्यूनिंग सर्किट में क्या करते हैं, हमारे पास एक नॉब होती है, we rotate that knob, and in that we have to change the capacitance of this capacitor because L and C, inductor and capacitor, both combined together forms the this one DPP I'm talking about. Yeah, you can see this on the screen. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so those are not on the tab, so I cannot copy and just like that. So it's okay if we do. I think we can, but that's not the time. So let's start from here. The question says a parallel plate capacitor, the last one. A variable air capacitor used in the radio circuit made of n semicircular plates, each of radius r, and position a distance d from its neighboring plate. A second set of similar plate is enmeshed with the plates halfway between those of the first set. Second set of plates can rotate as a complete unit. Right. So अभी तो इस पढ़ने में अजीब सा लग रहा है. Okay. Point here is कि जो हम ये कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ये दो अलग-अलग सेमी सर्कल्स हैं. This is one, और ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टैक है, ऐसे n number of plates है. इसके पीछे एक के बाद एक. And there is another one. So these two are initially not having any common overlap area. Initially those are completely separate. मतलब ये initially कुछ ऐसे होते हैं. One is like this, another is like this. जो हम rotate करते हैं तो one of them start rotating और वो उसके अंदर जाता है. So now in this case, this much is the overlap area. Understood the situation? दो half semicircular plates होती हैं जो initially बिल्कुल overlap नहीं कर रही हैं. जैसे जैसे हम उस नॉब को रोटेट करते जाते हैं उनके बीच में ये ओवरलैप एरिया बढ़ता जाता है. एंड बिकॉज दिस एरिया इज इंक्रीजिंग, सो दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विल आल्सो बी इंक्रीजिंग. अंडरस्टूड द सिचुएशन? विनीत? नहीं सर, नहीं आ रहा समझ. नहीं, ये सिचुएशन जो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ. जब हम किसी भी ट्यूनिंग सर्किट का कैपेसिटेंस चेंज करते हैं, उसका तरीका क्या होता है
दी ये किसकी बात हो रही है वो समझ गए ना, रेडियो में कुछ यहाँ पे लगे होते हैं Yes, sir. knobs. So when we rotate that knob, we are changing the frequency जहाँ पर ये मैच कर रहा है that frequency जो पुराने एनालॉग वाले थे अभी तो डिजिटल हो गया है. So in that case जो हमने एक एग्जांपल किया था ना, ऐसे बहुत सारे प्लेट्स मैश के जैसे आपस में कनेक्टेड हो, दिस इज वन सेट ऑफ प्लेट, मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बना रहा हूँ, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दे ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर, they all are connected together and having so they all are connected together at one end. और ये एक सेमी सर्कल है, मतलब इसका हर एक जो पार्ट है दिस इज द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल. वो मैं नहीं बनाऊंगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सी अंडरस्टैंड दिस इज द ये हमें क्या दिख रहा है, इस क्रॉस सेक्शन का ये साइड वाला पार्ट दिख रहा है, दिस साइड इज दिस डायमीटर इज ओनली विजिबल. सेकेंड जो प्लेट है वो इसके अंदर एनमेस्ड है एग्जैक्टली इन द अपोजिट सेम डिस्टेंस पे, ऐसे इधर दिस इज कनेक्टेड टुगेदर. तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एन प्लेट्स किया था, ये कुछ वैसा ही सीन है. अब इसमें ये नीचे वाले प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, ऊपर वाले प्लेट कनेक्टेड है, इनको हम रोटेट करते जाते हैं किसी भी एक को. सो व्हेन इट रोटेट्स, जैसे एक अभी इधर है एंड द अदर वन इज एग्जैक्टली ऑन द साइड ऑफ इट, तो दोनों का कोई कॉमन एरिया नहीं है, देयर इज नो कॉमन एरिया बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी ओवरलैप. ये समझ में आ रहा है, दोनों का ओवरलैप नहीं है अभी. इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस. Yes, sir. Okay, so since they both are not having any common area of overlap, initial capacitance is 0. जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे, जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे, सो दोनों के बीच में ओवरलैप एरिया बढ़ता जाएगा. This overlap area is now the area of the capacitor. This is clear? Yes, sir. ये एक को स्टेशनरी मान लो, दूसरे को हम रोटेट करते जा रहे हैं, जैसे रोटेट करेगा वैसे अंदर की तरफ ओवरलैप एरिया बढ़ता जाएगा. थोड़ी देर के बाद ऐसा होगा कि ये हाफ से ज्यादा ओवरलैप हो जाएगा, then the capacitance will be increasing because of the overlap area. Then this much is the overlap area. Capacitance of each capacitor अगर हम यहाँ पे calculate करते हैं, so the situation that was shown in the diagram, if you see that, ये outside वाला area कितना है, theta. What will be this area, this angle? How much is this angle? Beneath So 180 minus theta. 180 minus theta. So ये अंदर का जो angle आएगा, that will become 180 minus theta. So each capacitor at this instant when it is overlapped, ये है पाई माइनस थीटा. कैपेसिटेंस इसमें क्या लिखा हुआ था, ये जो दो प्लेट्स थे एक तरह के, इनके बीच का डिस्टेंस है डी. एनी टू कंसेक्यूटिव, जैसे रेड वाले आपस में कनेक्टेड है, इनके बीच का डिस्टेंस था डी. सो ये सारे डी. दूसरा वाला जो है वो एग्जैक्टली मिडवे आ जाएगा. सो किसी भी एक कैपेसिटर के लिए प्लेट्स के बीच गैप आ गई d/2. कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए. एरिया कितना हुआ इसका, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, theta by 2 pi times total area divided by a d/2. Okay, so थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर करनी है. दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ वन कैपेसिटर फॉर्म्ड, वन ब्लू एंड वन रेड. क्लियर? ये समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. विनीत, Yes, sir. आ गया. ये एरिया कैसे निकाला, वो तो आर्क किसी भी सेक्टर के एरिया निकालते, Formula. थीटा बाय 2 पाई ऑफ टोटल एरिया, पाई पाई गॉन, this will become half epsilon naught pi minus theta r square divided by d/2. so 2 भी कट जाए. अब मुझे बताओ, अगर n नंबर ऑफ प्लेट्स ऊपर वाली हैं, there are n पॉजिटिव प्लेट्स. ये क्वेश्चन अभी लास्ट बैच में पूछा था इसलिए मुझे याद है. आई एम नॉट सेइंग ऐसा मैं सुना रट के बैठा हूँ. इसमें क्या लिखा हुआ, there are n semicircular plates each of radius r, a second set of similar plates, यानी दूसरी भी n नंबर ऑफ प्लेट्स. पहली n, दूसरी n, टोटल प्लेट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ 2n. प्लेट इज हाउ मेनी, 2n. Yes, sir. 2n के बीच में गैप्स कितने होंगे, 1. 2n के बीच में गैप्स कितने होंगे, सर एक गैप होगा. बट ये कितने, जिसमें सी लिखा है ये सारे होंगे यार.
2n जैसे six plates है 1 2 3 अच्छा 4 हाँ 5 यस 6 सर यस इसके सर बीच में गैप कितने आते हैं 1 2 3 4 5 6 plates है तो बीच में ऐसे 6 गैप्स होंगे जहां पे एनर्जी स्टोर होगी. यस सर So if there are n number of plates, it will be n minus 1. Now here there are 2n number of plates. So total number of capacitors are 2n minus 1. और वो कैसे connected है? They all are connected in parallel. How? क्योंकि सबका positive potential, negative potential, V, all red will be at the same potential, all blues will be at same potential. दोनों के बीच में connect करोगे, they all will come in parallel only. 2n minus 1 कैपेसिटर है और सारे के सारे पैरेलल में आ गए. So equivalent capacitance. Why all they are in parallel? This is clear. क्योंकि पोटेंशियल सेम है. अगर पोटेंशियल से बिना समझ गए तो हमें नंबरिंग मेथड कर रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन ऐसे 2. जितने ऑड नंबर्स वाले वो सब एक पोटेंशियल पर होंगे, जितने इवन नंबर वाले वो सारे पोटेंशियल पर होंगे. सो each capacitance is coming out between the same set of points, इसलिए सारे के सारे पैरेलल में. C equivalent will be 2n minus 1 into C, and C is here epsilon naught pi minus theta r square divided by t. So ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज उतना मुश्किल नहीं था जितना कि विजुअलाइजेशन वाइज था. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. क्लियर? यस सर क्वेश्चन होपफुली सबके पास होगा. अगर नहीं है तो प्लीज ओपन इट. एंड अगर पहले नहीं किया तो अभी एटलीस्ट क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ के और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए. एक डाउट है मुझे. बोलो अमन. यस सर एक बार ये समझा दो आपने इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कैसे करा, कैसे एरिया निकाल लिया. किसी भी जैसे सर्कल हाँ. है, सर्कल के अंदर अगर हमें इतना एरिया निकालना है किसी एक छोटे से आर्क का, तो यहाँ पे थीटा बनाता हूँ. हाउ डू वी कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस पोर्शन? थीटा theta अपॉन by 360. 2 pi. Yes, 360 is 2 pi into total area. यस सर. Same logic here. Here angle was pi minus theta, which is like theta. Theta by 2 pi into pi r square. ओके सर. This formula is just like epsilon naught a by d. D is d by 2. ये दोनों के बीच में एक प्लेट आ गई थी half. यस सर. Yeah. Next question. सर क्वेश्चन नंबर 14 Question number 14. So this DPP is actually good. I mean, good as in you have to. So Two ये sphere of वाली radii A and B are placed distance d apart, a large compared to A and B. Capacity of the system. No, 13th or 14th? सर 14th 13 तो सर फॉर्मूला है डायरेक्ट वो तो आ गया 14th. फॉर्मूला यार, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. नो सर उसमें 1/A 1/B फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ गया ये. देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला, नॉट एट ऑल. कर लेते हैं हम. टू स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड बी आर प्लेस्ड डिस्टेंस डी अपार्ट. अब ये एक्चुअल में हमने जो पढ़ा था वो था स्फेरिकल कैपेसिटर. स्फेरिकल Yes. कैपेसिटर में क्या होता है? देयर आर टू कैपेसिटर्स, टू स्फीयर्स having a gap in between. This is two separate spheres. This is two different spheres जिनकी रेडियस है a और b और उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है d. क्वेश्चन नंबर 13. कभी कभी ऐसा होता है हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं बट हमें शायद right. So there are two spheres. This is first and this is another. Sorry. These two spheres having radius a and b, and they are having d distance in between. इधर है a radius, इधर है b और इनके बीच की डिस्टेंस है d. इसका फॉर्मूला नहीं किया हमने. नो. And this is not even a standard capacitor. We have to find the capacitance of this system.
2 sphere radii A and B apply resistance D. D is large compared to A and B capacity of the system. क्या करेंगे इसमें हम विदित? Yes, sir. ये क्वेश्चन से No, sir. yes or no? No, sir. Why not? Why not? अरे यार, हाँ अरे याद नहीं था। यार, अब तुम ऐसी बात करोगे तो मुझे गुस्सा ही आएगी। याद नहीं था क्या मतलब? ये इनिशियली से ही पता है हमें। एवरी फ्राइडे, लास्ट क्लास ही बोला था मैंने, हर फ्राइडे हम डीपीपीस और जितने भी डाउट्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। इट विल बी इसमें तो डाउट डिस्कशन। पोटेंशियल जो 1 पे V1 और V2 निकाल सकते हैं। हाँ नहीं, वो निकालेंगे, बट ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला था। यू सेड दैट इट इज डायरेक्ट फॉर्मूला। हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालेंगे और दैट पोटेंशियल विल बी इन टर्म्स ऑफ क्यू। जब भी कोई कैपेसिटर, दो Yes, sir. वायर्स भी आपस में KQ by कैपेसिटर A बनाते minus KQ by D. D distance. हाँ राइट। सो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा। वी कैन नॉट से पहले पोटेंशियल निकालेंगे फर्स्ट पे, पोटेंशियल ऑन द फर्स्ट स्फीयर, लेट्स से स्फीयर ए। फिर हम पोटेंशियल निकालेंगे स्फीयर बी का क्यू के टर्म्स में। एंड देन कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है। कैपेसिटेंस इज क्यू बाई वी Q by delta V V1 minus V2 हो जाएगा। एंड वी विल बी V1 माइनस V2। V1 कितना होगा? बिकॉज ऑफ इट्स ओन चार्ज KQ by A and because of the other negative charge minus KQ by D. V2 because of its own charge minus KQ by B because of the other sphere KQ by D. Plus KQ by दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो KQ by A minus KQ by D minus of minus KQ by B plus KQ by D. This will be the potential difference. From potential difference, we will find out the ratio of Q by V. This is, if we take KQ common, 1 upon A plus 1 upon B minus 2 upon D. K is 1 upon 4 pi epsilon naught, so Q upon 4 pi epsilon naught, 1 upon A plus 1 upon B minus 2 upon D. The ratio of Q by V is 4 pi epsilon naught divided by 1 upon A plus 1 upon B minus 2 by D. That is the answer. yes sir. So question का concept समझना जरूरी है. How we get the answer? It's not a standard formula. I don't know where did you do this formula, but So this type of questions I have did इसलिए पता। conceptual question है इसलिए कोई straight forward. Okay. Question number 14. Understood या doubt है किसी को इसमें? ऐसे किसी भी system का हमें capacitance calculate करना पड़ सकता है. जैसे engineering level पे तो जो हम अर्थ के ऊपर जो मोटे मोटे ट्रांसमिशन केबल वायर्स होते हैं उनके और अर्थ के बीच में भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं. दैट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ द लॉस. बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आई कैन फॉर्म दिस. जो दो वायर्स, दो बड़े बड़े जायंट स्ट्रक्चर टाइप होते हैं इनके ट्रांसमिशन केबल्स के लिए, उनके बीच में जो केबल्स होती हैं दे आर एट वेरी वेरी हाई पोटेंशियल. उसके और अर्थ के बीच में दिस द होल स्पेस, Earth is at zero potential and this is at 44 or sometimes 40,000 volt. Because of that, though the area is very small, उसका कितना एरिया होगा वायर का, but इनके बीच में भी कैपेसिटर बन जाता है and that capacitor also has some contribution in the energy loss. ये समझिए किसकी बात हो रही है? You understood this ना? Situation. जो हाईवे के किनारे बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जिसमें किसी पावर जनरेशन सोर्स से सिटी तक की सप्लाई आती है 44 kV और 40,000 kV तक. उसके और अर्थ के बीच में भी एक छोटा सा कैपेसिटेंस बन जाता है जिसकी भी हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है. तो हमने जितने स्टैंडर्ड पढ़ रखे थे उसके अलावा भी कैपेसिटर्स प्रैक्टिकल होते हैं. और बताओ, इवन इफ वी हैव सम लूज कनेक्शन तो उसमें भी कैपेसिटर बन जाता है. जैसे दो नॉब अगर हम कंप्लीटली टाइट ना करें, बीच में थोड़ी एयर आ जाएगी. एयर इज डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर इज, इसलिए सारे कनेक्शंस को हमेशा बहुत टाइट रखना चाहिए. बीच में एयर आ जाएगी देन इट विल बिकम अ कैपेसिटर.
which will also have some loss of the energy. Question number 14. A long cylindrical capacitor consists of 4 long cylindrical containers, cylindricals with effective radius A, B, C, and D are joined with metal strip. Capacitance per meter length of the arrangement. Very nice. So इसमें अगर हम डायग्राम में समझें, वेरी नाइस. ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर व्हाट वी कैन डू हियर इज, इसमें दो अलग अलग कैपेसिटर्स बन रहे हैं. देयर आर टू डिफरेंट कैपेसिटर. ठीक है, अब ये जो डायग्राम है इसमें क्या हो रहा है, ए और बी के बीच में गैप है. सो देयर इज वन कैपेसिटर फॉर्म बिटवीन ए एंड बी, देन दैट इज अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस है. देयर विल बी वन सिलिंड्रिकल कैपेसिटर फॉर्म. सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था? लेट्स से दिस इज C1, दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर. व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर? याद है? 2 pi epsilon naught L divided by ln of B upon A. यहाँ पर outer radius A and inner radius is B. So it will become ln of A upon B. The another capacitor is formed between C and D, और इनके जो outer plates है वो आपस में connected है. That means what type of combination is this? Series or parallel? अगर हम अंदर एक positive terminal ले लें और बाहर negative, this is the like battery connected here. There are these two capacitors connected. एक जो A और B के बीच में बनेगा और दूसरा जो between C and D. This is the another capacitor C2 जो इन दोनों के बीच के गैप में है. And C2 is 2 pi epsilon naught L divided by ln of C by D. Parallel? Yes, sir. No, series. पोटेंशियल तो डिवाइड हो रहा है ना. टोटल पोटेंशियल में V लगा, V1 पहले के क्रॉस, V2 दूसरे के क्रॉस. Potential is not same. They both are connected in series, and therefore उनके लिए 1 by C equal is 1 upon C1 plus 1 upon C2. Both the capacitors are in series, क्योंकि जो भी हमने बाहर से पोटेंशियल लगाया है बैटरी का, that will be divided in these two. Both the capacitors are in parallel. Sorry, not parallel, series. Both the capacitors are connected in series. Reason being, जो भी हमने बैटरी में यहाँ पोटेंशियल लगाया था बैटरी से, that is getting divided into these two. V1 पहले के क्रॉस, V2 दूसरे के क्रॉस, and that V1 plus V2 will be, so 1 upon secant 1 upon C1 आ जाएगा ln A by B divided by 2 pi epsilon naught L. 1 upon C2 will be ln C divided by D divided by 2 pi epsilon naught L. ln A plus B आ जाता है ln A into B, so AC divided by BD upon 2 pi epsilon naught times L.
इन्वर्स कर दोगे तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln AC अपॉन B। ओके नेक्स्ट। थोड़े क्वेश्चंस ना थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेंगे। इट्स नॉट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट। या सीरीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सीरीज है पैरेलल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाता तो हम बोल सकते थे कि वो पैरेलल होंगे इफ देयर लाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। सी और बी के बीच में कैपेसिटर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एक वायर लगा है। बिकॉज ऑफ दैट मेटलिक वायर देयर विल नॉट बी एनी चार्ज स्टेइंग बिटवीन सी ऑन सी एंड बी। यस, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके नेक्स्ट थोड़ा जल्दी करते हैं। या नेक्स्ट डाउट और किसी को? अच्छे क्वेश्चन है इसमें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सो डोंट मिस इट। यस 21 तो हमने कर लिया था शायद। 21 जैसा हमने क्वेश्चन कर लिया था, नॉट एग्जैक्टली 21। यस नेक्स्ट डाउट फ्रॉम दिस डीपीपी। किसी ने क्वेश्चन नहीं किए? विदित हाँ सर, एक भी क्वेश्चन नहीं किया आगे? ये वाली शीट नहीं करी। इसके आगे वाली कोई करी है? तीसरी, चौथी, पांचवी? कृष, आशुतोष, क्या हो गया भाई? बस सन्नाटा है, करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ आगे बताओ, और किसमें डाउट है? नेक्स्ट। जिसने भी किए नहीं किए कोई बात, मैं बात करता हूँ पेरेंट्स से, बिकॉज ये कंफर्ट जोन में आ गए सब लोग। सर तो डांटते हैं नहीं, अब तो बढ़ता नहीं है। यस बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका। एनी डाउट? कुणाल, आशुतोष, दिस कॉम्प्रिहेंशन? थ्री कंडक्टिंग शेल्स, चलो ये पैसेज अभी करते हैं, नहीं किया कोई बात नहीं, अभी क्विकली करके दिखाओ। ऐसे हम चैप्टर खत्म करते जाएंगे और आप एक बार होमवर्क ही नहीं करोगे, तो सोल्यूशन दे दो, इसके सोल्यूशन चाहिए मुझे। विनीत आपने किया ये पैसेज क्वेश्चन? नहीं सर, इस वर्कशीट की 20 किए हैं और अगले वर्कशीट की 20 किए हैं। सर आप एक बार प्लीज क्वेश्चन नंबर 21 का डायग्राम समझा दोगे? मतलब वो जो आपने पहले क्वेश्चन करवाया था वो तो हो गया था, लेकिन मेरे को उसका डायग्राम नहीं समझ में आया था। यस कृष। सर नेक्स्ट वर्कशीट के डाउट्स
ले लो, अगली बार एक कर लेंगे। अगली बार अगला चैप्टर होगा। मैं तो आज सोच रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 वर्कशीट मैंने अभी स्टार्ट निकाल के रखी थी करने के लिए। यार तुम लोग बेटा सर दौड़ना। यस सर क्वेश्चन नंबर 21 का आप एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि आई थिंक वी डिड सॉल्यूशन जो एग्जैक्टली आपने, सेम यस सर द सेम वन, तो उसका सॉल्यूशंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरे को डायग्राम ही नहीं समझ में आया। डायग्राम्स। डायग्राम ऐसा है, हमने बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है वो ट्रायंगुलर ब्लॉक के बीच में। तो एक तो तरीका है कि अच्छा अच्छा इजी इजी पढ़ते रहो एनसीईआरटी, ऐसा थोड़ा खुश रहो, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, दिखी जाएगी जब आएगा। और एक दूसरा तरीका है कि आप अभी से मेहनत कर लो। यू कैन डू समथिंग इन द एडवांस ऑल्सो, मतलब ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि सारा आपको ही करना है, मैंने उससे क्वेश्चंस कराए हुए हैं और दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू। बट अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर सब बेकार। सिर्फ सपने देखने से नहीं होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हार्ड वर्क, उसके बाद बाकी सब काम आता है। ओके द डायग्राम इज लाइक दिस। ये ऊपर जो कैपेसिटर की प्लेट है इसकी लेंथ L है, इधर B है। हमने एक जो अंदर डाइलेक्ट्रिक डाले हैं वो ट्रायंगुलर वेज के फॉर्म में, मतलब ये दिस लाइक दिस होल इज वन। दूसरा वाला डाइलेक्ट्रिक जो है दैट इज लाइक दिस वन। The another dielectric is in this. ऊपर वाला शायद K2 है, नीचे वाला K1 है। ऊपर वाला K2 है, नीचे वाला K1 है। करेक्ट। सो दिस इज ऊपर वाला K2 है। नीचे वाला K1 है और हम इनके बीच में। आशुतोष क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहे? आशुतोष यस सर। क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहे? फुल मस्ती चल रही है? सर बोलो सर। सर मैं बीच में तो मतलब वहां चला गया था अपने यहाँ पे, और फिर मैं अभी आया था थोड़े दिनों पहले, तो हुए नहीं। अपने यहाँ मतलब वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पढ़ाई बैन है। सर हो नहीं पाई वहां पे। कंसिस्टेंसी इज द की। सर सेंटर्स कब से खुल रहा है? बेटा वो तो गवर्नमेंट से पूछो, मैं तो सेंटर में ही बैठा हूँ। I am here only, but you will be allowed only when the government gives a nod and situation is, I don't know, maybe July, mid-July, August तो भी है. So, but still, center is open, but yeah, I'm not encouraging you to come. ठीक है? यस सर। हाँ, आपको आने के लिए अभी जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के पढ़ाई करने की जरूरत है। और आई हैव अ टेस्ट ऑफ डीसी सर्किट इन फ्यू डेज, सो आई हैव डन क्वेश्चन ऑफ कैपेसिटर। बेटा क्रश, कैपेसिटर के बाद ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है और हम कैपेसिटर बहुत सदियों से कर रहे हैं। इतना टाइम मिल जाता है बिकॉज हम इतने सारे कॉन्सेप्ट करते हैं और इतना धीरे धीरे करते हैं कि इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग इट टुगेदर, ये 15-15 20-20 क्वेश्चन की डीबीपीज हैं, उनमें कुछ खास बात पढ़ने वाला नहीं है। अगर आप एक थंब रूल बना लो, मुझे 20 क्वेश्चन करके ही सोना है, 20 क्वेश्चन पर डे। बहुत खतरनाक पढ़ने से या बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से, एरोडो क्रोटो जिम्नास्की यूनिवर्सिटी फिजिक्स, उससे कुछ नहीं होता है। इट्स द कंसिस्टेंसी दैट मैटर्स। 20 क्वेश्चन करके मुझे सोना है, जैसे कि हमारा रोज का कुछ ना कुछ डेली रिचुअल होता है। सो मेक इट योर हैबिट, एवरी डे गोल, 20 क्वेश्चंस आई हैव टू सॉल्व मिनिमम। 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी 1 घंटे लगेंगे, कभी 2 घंटे भी लग सकते हैं, बट इट विल बी वर्थ। आपको 2 घंटे अगर देने का टाइम नहीं है तो आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो? फिर तैयारी मत करो, सिंपल सीबीएसई पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, दिमाग को पीछे रख दो कहीं बैक सीट पे,
दिमाग की जरूरत होती नहीं है, कोई भी एरा गैरा नत्थु वगैरह पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, पास हो सकता है। इस साल तो एग्जाम ही नहीं हुआ भगवान की दया से। अब जो लोग खाली एनसीईआरटी में डूबे हुए थे, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है। ओके परिधि, यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम? नाउ आई ट्राइड कि थोड़ा 3D में समझ आ जाए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू कैपेसिटर, जो हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स लिए थे। बेटा इस बैच में अच्छे बच्चे हैं और उम्मीदें हैं आप लोगों से, मतलब इसको ना ऐसे बर्बाद मत करो। ये बहाना नहीं चलेगा कि ऑनलाइन था, गांव चले गए, शहर चले गए। परिधि, यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम? यस सर, दिस इज क्लियर। ये जो छोटा वाला जो हम लोग उसका पार्ट लेते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं वो वाला। हमने ये कट किया, इसकी लेंथ है dx, ये ऊपर एक छोटा सा बन गया कैपेसिटर, दिस वन इज कैपेसिटर, ये इसके ऊपर वाली प्लेट है और एक नीचे वाली प्लेट होगी। कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला k एप्सिलॉन नॉट a बाई d। तो जो पहला छोटा कैपेसिटर है उसके लिए आ जाएगा k2 एप्सिलॉन नॉट। ये एरिया कितना हुआ? दिस इज द प्लेट एरिया। लेंथ इसकी b, बी डी एक्स। b इंटू dx डिवाइडेड बाई, तुमने शायद ये ऊपर वाला y लिया होगा, या अगर नीचे वाला y लिया तो ऊपर वाला d माइनस y। इसकी थिकनेस कितनी आ गई दोनों प्लेट्स के बीच में भाई? k एप्सिलॉन नॉट a बाई d। मुझे तो आज मैं करता हूँ मामा से बात, मामा थोड़ा ज्यादा वो करने लगते हो। यू आर डूइंग एनीथिंग एल्स, दैट इज आल्सो फाइन विद मी, बट जो भी जहां भी जैसे भी करोगे उसमें डाउट आएंगे। करंट टॉपिक जो भी चल रहा है कैपेसिटर, दिस इज द पार्ट ऑफ द क्लास। ये डीपीपी के लिए मैं क्लास वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे थ्योरी पढ़ाना मुझे भी ज्यादा इजी लगता है और सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। आई एम टेकिंग इट वेरी स्लो सो दैट यू कैन गो डीप इनटू दिस कंटेंट। अगर हम जेई की बात करते हैं या जेई या नीट लेवल की, तो उस लेवल की प्रिपरेशन भी करनी होती है, ना सिर्फ कहने या बोलने के लिए। यू हैव टू पुट द एफर्ट। और अगर आप कंप्यूटर लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो 9 आवर्स पर डे शुड बी योर टारगेट, 3 आवर्स पर सब्जेक्ट पर डे। ओके परिधि, यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम? यस सर, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लेंगे इन फिर। दोनों को इक्विवेलेंट पैरेलल में ले लेंगे बिकॉज अगेन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट है एंड इट इज एडेड डिवाइडेड। फिर हमने एलसीएम लेके और x पे x equals to 0 to x equals to l पे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लिया था, दैट यू कैन सी फ्रॉम द नोट्स। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहे? सर आपको आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलो यस। यस सर, मैं वो जी मेंस वाली बुकलेट से कर रहा था अभी questions। अरे वो छोड़ दो बेटा, ये क्लासरूम का क्लास का पार्ट है, इसको आपको करना पहले, वो आपकी एडिशनल एक्सरसाइज है। दिस इज लाइक होमवर्क which you have to do, this is must। And for the NEET people, one single choice वाले questions, that portion you have to। आप आगे वाला छोड़ सकते हो, that you are allowed only one option correct और subjective जो ऊपर के conceptual वाले हैं, these part from every DPP you are supposed to do as a homework। पूरा करोगे then nothing like it। ओके जैसे ये क्वेश्चन है, ये नीट में तो नहीं आया है बट एम्स में आ सकता है। एम्स के लेवल का है, लेकिन अभी एम्स का लेवल गिरा दिया है नीट वालों ने, तो कोई कुछ कह नहीं सकता। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 20% चांसेस है आने के, 80% है। लेकिन जैसे आकाश का जो एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल का या ITS, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब आकाश के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट द बेंचमार्क। Benchmark is that you should know each and every type of question how to solve। फिजिक्स में थ्योरी पढ़ना, कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत आराम से बैठ जाओ, पैर ऊपर कर लो कुर्सी पे रख के, हाथ जेब में रख लो, listen to these stories। But unfortunately that is not asked in the exam, competitive exam। When I say exam, it's mostly competitive exam। ठीक है, सो करना है तो ढंग से करो यार, नहीं तो मत ही करो। पहले चैप्टर की सारी मैंने करा दी, सेकंड क्या आपको करनी थी वो भी नहीं हो रही। डीपीपी नंबर 3
सिर्फ घर वालों को बोलने के लिए कि हाँ बच्चा मेरा बहुत पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होता है. At the end, it will be your loss. Energy of charge capacitor, effect of dielectric force between, this is I think DPP number 3. सबने गलती से DPP 2 पढ़ गया है, वो चैप्टर का नाम था actually. DPP number 3, this one, yes. बताइए doubt. Kevin, are you solving question from here? Kevin? Very good. No response. He is not here. Vrishti, Yes, sir. you are solving question from SL Arora. Second chapter complete हो गया है आपका किसी बुक से? Yes, sir. From SL you have done and no doubt. नहीं सर, डाउट नहीं थे, मैंने ऑनलाइन ही देख लिया था, तो जितना भी था वो ठीक हो गया था. ऑनलाइन देख लिया. भाई भी ऑनलाइन भी हो जाती है तो क्या ही जरूरत. So many videos are there. Okay. और DPPs, मेरा पेशेंस लेवल बहुत हाई है वैसे, बट दिस बैच इज नाउ गोइंग इन अ वेरी आइडल मोड. पता नहीं किसका वेट कर रहे हो. सिचुएशन ऐसी रहने वाली बेटा, अभी एक 10-5 दिन में सही नहीं होने वाला है कुछ भी. सो डोंट वेट कि हाँ सब सही हो जाएगा, हम स्कूल जाएंगे, हम खुश रहेंगे, हम मजे करेंगे, तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर. अभी सेकेंड फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ पता नहीं कितनी बेवानी बाकी है. सो डोंट फूल योरसेल्फ. हाँ, बताइए DPP 3 में डाउट्स क्या है? डाउट? यस, डाउट. DPP नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Parallel plate capacitor of capacitance A, plate area A, spacing 1 millimeter using a 600 volt. Find the energy stored. सुशांत, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, गिव मी द फॉर्मूला ओनली. चलेगा अगर नहीं किया आपने तो. वन क्वेश्चन. सुशांत? Sir, Q square by 2C. बट क्यू तो पता नहीं है. वी डोंट नो क्यू. एरिया, Yes, sir. एरिया गिवन है, डिस्टेंस गिवन है. यस, आर्यन, मिस्टर आर्यन. सर हाफ CV स्क्वायर. ऑफ CV स्क्वायर, और CV स्क्वायर के लिए चाहिए हमें पहले C निकालना पड़ेगा. C निकालना पड़ेगा. C निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट इज गिवन, मतलब वो हमें बताइए. एरिया इज गिवन एंड डिस्टेंस इज गिवन. Epsilon naught A by D, that is the capacitance, and then potential is given, so half CV square. Yes, Aryan, यस सर. बेटा क्वेश्चंस हुए हैं कुछ? यस सर, हो रहे हैं सर. अरे सर जो डीपीपी सर मैं इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा सर. वो मतलब SL अरोड़ा के क्वेश्चंस हैं वो निकल रहे हैं. थोड़ा के निकलेंगे, वो है वार्म अप. असली मैच ये है. यस सर. तो करके रुकना नहीं है, उसके बाद ये करना है. वो बस केवल इंजन गर्म करने के लिए इजी इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा स्टार्टिंग के लिए. बट रियल क्वेश्चंस, और ये भी एसएल अरोड़ा में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ये जो इस डीपीपी के क्वेश्चंस हैं, दिस इज नॉट द वेरी हाई लेवल इनिशियल क्वेश्चंस. लास्ट में जेई वाले वो थोड़े बहुत हो जाते हैं, बट इट इज ओनली कॉन्सेप्ट चेकिंग. एरिया गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, कैपेसिटेंस विल बी एप्सिलॉन नॉट A by D. कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो उस समय एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा. अगर चार्ज गिवन होता श्रेया तो हम यूज करते Q square by 2C. Yes, sir. मैंने Here गलती से voltage. चार्ज कर दिया था. हाँ, ओके.
Divyanshi, what is the formula for electric field between the plates? Two parallel plate capacitor, what is the formula for electric field between them? Divyanshi, formula for electric field between the plates of a capacitor. Second question. Divyanshi, electric field between the plates of the capacitor. Yes. Sir, sigma by k epsilon. Sigma by epsilon naught k क्यों? यहाँ तो कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है ना? हाँ, sorry. Q by A epsilon naught, sigma is Q by A, और Q तो हमें पता नहीं है, Q कहाँ से आएगा? CV से. So basically हम सीधे यहाँ पे V हमें पता है और D पता है. So CV upon A epsilon naught, C is epsilon naught A by D, तो हम इसको directly भी calculate कर सकते थे. Electric field, because we know potential difference and we know distance between them. So E is equal to V by D. Yes, Divyanshi, formulas याद नहीं है अभी? Yes, sir. Sorry, sir. How much energy is lost in charging of capacitor, Mr. Kunal? Mr. Shreya, you want to say, I think. Yes, Shreya, how much energy is lost in the capacitor charging? So half the work done. How much is that finally? It's Sir, half QV. half. Half QV और half CV square same. जितनी energy store होती है, उतना ही heat की loss होती है. Work done by battery का half, and battery work done is QV is CV square. How much energy is lost in the capacitor? Exactly same as energy stored. Why there is a loss of energy? This is a conceptual question. And Kylie, why there is a loss of energy during the charging of capacitor? Kylie, why there is a loss in energy in capacitor charging? What happened? Mihir, what is the reason of loss of energy? There's a very general answer to this also, and there's a very specific answer to this also for this particular situation. Capacitor में loss of energy क्यों होती है? Kylie, are you there? Sir, resistance की वजह से. इसका resistance कहाँ से? अच्छा, मतलब in general वाला आंसर दिया, right? But capacitor ना, ये resistor थोड़ी है. This is not a resistor, this is capacitor. Rudra, why there is loss of energy? Sir, मैं try करूँगा. बोलते रहते हो, किसी और को ही मौका देते. Yes, Mr. Vidit, why there is a loss of energy in the charging of capacitor? Sir, heating. हाँ? Sir, due to heat dissipation. नहीं, वो heat क्यों हो रहा है? That's the question. Why there is a heat dissipation? The physics of it. Sir, Vidit, sir, internal friction. In? Sir, internal friction, sir, जब वो मूव करेंगे तो फिर आपस में कोलाइड करके फिर एनर्जी लूज होगी. इसमें करेंगे कोलाइड? क्यों करेंगे कोलाइड? मतलब इन कनेक्टिंग वायर्स में, यहाँ तो कुछ जा ही नहीं रहा ना, बीच में तो गैप है, हवा है, कोलाइड क्यों करेंगे? Between these plates there is no flow. वो जो आप बोल रहे हो, that is kind of true for a resistance में electrons flow करते हैं एक end से दूसरे end पे, बीच में multiple collision होता है. Because of collision it has loss of energy. Yes, Aman, you wanted to try. मैं कह रहा था कि चार्जिंग के समय रेजिस्टेंस की वजह से हो जाता था इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्ट की वजह से. रेजिस्टेंस तो है नहीं ना इसमें, कहाँ से रेजिस्टेंस कहाँ से? सर मतलब तो जब चार्ज कैसे होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा हीट
प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा हीट डिसिपेशन भी होता है, जैसा उसमें तो उसके वजह से एनर्जी लॉस हो जाता है। That is why I said ये chemistry type answer. Chemistry में कुछ भी बोल दो टाइम फिट हो जाता है. And there's a very specific answer to that situation. Chemistry में सब चल जाता है, कहीं भी solvent effect, hindrance, bulky nature, polarization, इतना आता है सब बोल दो एक ही क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ लग जाएगा. इसमें क्या होता है? Specific answer. When capacitor was not charged, there's no problem. It doesn't have any problem in coming charge. जैसे जैसे इस कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल आ जाता है which is equal to Q by C. अभी बैटरी को इसको चार्ज करने में बाहर से वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट दिस पोटेंशियल. बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज, जैसे जैसे चार्ज आएगा वैसे वैसे बाकी आने वाले चार्ज को रिपेल करेगा. इट डजंट वांट मोर चार्ज टू कम because this plate has already acquired some positive charge. This positive doesn't want more positive charge to come. As more charge come, it repels it. उस repulsive force के against जो work करना पड़ता है, that work is lost, is the cause of loss of energy. उस work done का एक कुछ portion energy में store होता है, that is half CV square, and some portion is lost. Exactly same, वो हम mathematically calculate करके देख चुके हैं. It will be exactly same, as much is stored, same will be lost. But why there is a loss? Because as the capacitor starts charging or getting charged, it repels the another charge given by the battery. The work done against this repulsive force will be the reason or cause of energy loss. Understood? Yes, sir. Very nice. Next is what is the magnitude of force between the plates of charge capacitor? इसका हमने direct formula किया था. Yes, anyone? What was the formula of force between the Q plates? by 2A epsilon naught. Q by 2A epsilon. Q squared नहीं होना चाहिए फोर्स के लिए. Q square by 2 epsilon. So make one formula list in your own handwritten. Okay. इसको हम ऐसा भी सकते हैं Q into Q by 2A epsilon naught. Q by A epsilon naught is electric field. So that will be Q into E by 2 because E we have already calculated. So these questions are not difficult. These questions are just a concept based question. If you know the method, if you know the concept, you can very easily solve. Right. Question number second. Question number second. Question number second. ये सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी मैंने कराए और इनपे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराए हैं. दैट इज व्हाई यस parallel plate of capacitance 40 centimeter square and plate separation 1 is charged using a 12 volt battery. Area given है, distance given है. पहले हम कैलकुलेट करेंगे capacitance is epsilon naught A by. Second step is the plate separation is made 2 mm while the battery remains connected. बैटरी को कनेक्ट रखते हैं हमने इसके बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया है. जो पहले 1 mm थी, now that distance becomes 2 mm. What remains constant, Prince, if battery is connected? Prince? Yes, sir. Sir, एक बार question repeat कर. बड़ा इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमने बैटरी को कनेक्ट रखते हुए ही इसकी बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया 1 mm से 2 mm. Distance between the plate is doubled while battery remains connected. मेरा क्वेश्चन था बैटरी कनेक्ट रहती है then which quantity remains constant? If battery is connected throughout the process, what remains constant? So Potential difference. अगर बैटरी हटा देते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है. So it says if plate separation is made 2 mm, find the work done by the external source. बाहर से जो external source है क्या है वो?
बैटरी नहीं, जो भी इसको पकड़ के बाहर लेके जा रहा, नॉट द बैटरी, द वन हु इज पुलिंग देम, बिकॉज दे डोंट वांट टू गो अवे। इनमें कुछ चार्ज है, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर, सो समवन हैज टू पुल, और उस पुल करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज द work done is equal to change in energy of this capacitor. Correct? ये समझ आ रहा है? Yes, sir. सर अब सीधा वो लगाना है फॉर्मूला। बेटा सर अब सीधा लगाना है ना फॉर्मूला। इसलिए फॉर्मूला लेना है, यस, हाफ CV स्क्वायर, half CV square minus half CV dash square, sorry half C dash V square, C तो सेम ही रहेगा, sorry So V D- same रहेगा, V yes. dash C will become C by 2. ओके आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे कि अभी टाइम कम है, सो आई एम जस्ट गिविंग द हिंट, डिस्कसिंग, ये आपको होमवर्क में ही करने थे क्वेश्चंस। सेकंड, फाइंड द चार्ज ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी इन द अबव प्रोसेस ऑफ चेंजिंग दिस प्लेट फ्रॉम 1 mm to 2 mm। तो जब ये 1 mm पे था तब इस पे चार्ज कितना, वो निकालेंगे, Q1 is equal to CV। जब ये 2 mm डिस्टेंस पे आ गया तब इसके बीच में जो चार्ज आएगा, that will be calculated from the new value of capacitance, Q2 is equal to C dash into V। चार्ज ट्रांसफर टू दी बैटरी कितना हुआ, पहले चार्ज इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, पहले तो ये बोलो, चार्ज decrease, और डिक्रीज, so decrease, it will decrease because of the capacitance decreasing and potential same, तो चार्ज बैटरी में वापस आ जाएगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है चार्ज ट्रांसफर टू बैटरी, नॉट बाय द बैटरी। टोटल चार्ज इनिशियली था Q1, बाद में हो गया Q2, दिस मच चार्जेस gone to the battery again। Find work done by the battery in this above process। बैटरी के वर्क डन के लिए क्या था फॉर्मूला, बैटरी इज डूइंग पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क, so it's a negative, negative because it is not providing the charge is going back into this, और work done by battery का फॉर्मूला Q into V होता है because potential of the battery is constant, so here it will be minus of delta Q into V, delta Q is the charge that is gone back। Is battery is being charged or discharged, quite obviously charged, क्योंकि charge कैपेसिटर पे कम हो रहा है तो वो बैटरी के अंदर ही जाएगा, it is going into the battery, that means the energy, sorry, the charge is increasing in the battery, charge is going, that means battery is getting charged। क्वेश्चन नहीं किए तो अभी करने हैं आपको ये आज की क्लास के बाद, क्योंकि अब थोड़ा पानी सर से ऊपर निकल रहा है, आई वाज टेकिंग इट वेरी वेरी लाइटली। It should not be taken so lightly। Yes, next question is okay, next question is question number 3। A pyramid capacitor with circular plate, okay, similar thing is बस हमें radius given है तो वहां से area निकालेंगे, distance given है, we calculate capacitance। Capacitance of the capacitor is epsilon naught A by D, and when capacitor is fully charged, the value of charge appears on each this capacitor is disconnected from the battery and plates are moved apart। Second, third question is battery is disconnected, अगर battery disconnect करते हैं तो charge same रहता है, पहले Q square by पहले Q square by 2C और बाद में Q square by 2C dash, correct? Yes,
बेटा समझ आ रहा है ना? ये सेम क्वेश्चन है, बस जो सेकंड कंडीशन थी, अगर हम बैटरी हटा देते हैं, बैटरी हटाएंगे तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, सो मेथड इज सेम। जैसे इस वाले में हमने फॉर्मूला यूज किया था हाफ CV स्क्वायर माइनस हाफ C dash V square. Likewise here it will be half Q square by C minus Q square by 2C. Yes, Krish. Krish, Yes, sir. you want to say something? No, sir. अच्छा, इसमें थर्ड पार्ट, what are the new value potential difference between the plate? Charge remains same, Q by C dash. तो पहले का जो था उससे डबल हो जाएगा. Work during the process is change in energy. What is the force between the capacitor now? Is it more or less than the previous value? कैपेसिटर के बीच, प्लेट्स के बीच में जो फोर्स है बैटरी को हटाने के बाद, अगर हमने प्लेट्स को डबल कर दिया, then what happens to the force between the plate? Is it increasing or decreasing or remains same? How much is the force between them? Sir, it's decreasing. How? Sir, separation हो गया ना? Okay, separation हो गया, so So वो inversely proportional है. Sir, inversely proportional है. कैसे इन्वर्सली? किसकी क्या था फॉर्मूला? Sir, एक सेकंड में लिख के बताता हूँ. एक सेकंड. अभी हमने पीछे लिखा था, मैं लिख देता हूँ, Q square by 2A epsilon. क्या चेंज हो रहा है? Q is changing or not? Yes, sir, Q is changing. Why Q is changing? यार बैटरी चली नहीं, गई. Q नहीं चेंज कर रहा. ये तो सेम है. एक सेकंड. मैं कंफ्यूज हूँ. The same है सब कुछ. Force will be exactly same. New force will be same as initial force because not any single quantity is changing. F dash is equal to F. Question number 4. How a dielectric increases the maximum operating voltage without changing the size? By decreasing the potential, since it reduces the electric field. Why water molecule is permanently polarized? Because it has two different electronegative atoms and not aligned in the same line. What types of molecule has no permanent polarization? The linear ones like carbon dioxide, where the dipole moment cancelled out. If a dielectric field in the capacitor plate is heated, how its capacitance changes? What will be answer to third part? अगर हम डायरेक्टर को हीट करते हैं तो क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. Yes, sir. Yes, that's not the correct answer. Anyone else? हीट करने पे डाइलेक्ट्रिक के क्या इफेक्ट पड़ सकता है या पड़ेगा? Yes. डाइलेक्ट्रिक कैसे रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/k. Any formula named method. How does it reduce? What happens so that it reduces the electric field inside the? What happens so that capacitor? Dielectric decreases the external electric field. सर क्योंकि फोर्स रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू पोलराइजेशन. Due to polarization, and polarization is always in the direction of electric field. Positive charge, negative charge, positive charge field की direction में, negative charge opposite direction में, and that causes a opposite direction induced electric field. Net field is reduced. E net is E minus E induced. Correct? Correct? Yes. Now, what happens अगर हम इसको हीट करें? हीट करने पे ये जो डाइपोल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास थर्मल एनर्जी आ जाएगी. थर्मल एनर्जी आने से क्या होगा? इनका जो अलाइनमेंट है वो फिर से मिस अलाइन होने लग जाएंगे. These molecules will now start getting randomly oriented because of their thermal energy.
तो उसकी वजह से जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होने लग जाएगी. इट विल नॉट रिमेन exactly same, it will reduce, therefore dielectric constant will reduce. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस सर. सर एक बार फिर समझा दो. फिर से डायरेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी उसका रीजन था पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली अपोजिट प्रोड्यूस होती है. अभी बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ द एनर्जी, they start orienting randomly. Random orientation, due to which they are not able to reduce the electric field much or as much as it was at the low temperature. Not able to reduce electric field, therefore dielectric constant is decreasing. K decreases, therefore K decreases with increase in temperature, hence C also decreases with heating. अब ये क्वेश्चन ना बोर्ड के लेवल पे भी आ सकते हैं. इट्स नॉट लाइक बोर्ड का भी लेवल फिजिक्स का तो एटलीस्ट थोड़ा हाई होता है. Not that this is J level, this is the conceptual understanding level which can come in any exam. Yes, question number 5. A parallel plate capacitor with dielectric constant K between the plate has capacity C is charged to potential V. So half K times CV square energy आ गई, KCV charge आ गई. Dielectric slab is slowly removed from the plates and battery is connected all the time, no problem. Dielectric slab is slowly removed and then reinserted. अगर हमने निकाल के और फिर डाल दिया, that means what? It is having exactly same initial and final state. जितना initial charge था उतना ही final charge होगा, जितनी initial energy थी उतनी final energy होगी. So there won't be any kind of change. पहले डायरेक्टर इसके अंदर था कंप्लीटली फिल्ड, फिर हमने डायरेक्टिंग निकाल दिया और फिर से डाल दिया. तो बीच में प्रोसेस था कि डायरेक्टिंग बाहर निकल गया, बट अगेन दैट डायरेक्टिंग इज रीइंसर्टेड, सो इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज exactly same. Initially it was filled, then it is taken out and then again reinserted. Initial state of final state में charge भी same होगा, so there is the same amount of energy, there is the same work done by battery. So इस process में work done will be 0. The work done by the system, in this process will be 0 because it will be final and minus initial energy of the system. Question number 6. Question number 6. ये आपको बताना, हमने अभी सेम क्वेश्चन डिस्कस किया है in the previous exercise. Question number 6. A fully discharged capacitor is connected to battery till the potential difference become capacitor become equal. बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम द कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम द बैटरी एंड finally the battery potential is equal to the terminal potential difference of the capacitor. Ratio of energy stored in the capacitor. अभी डिस्कस किया हमने, जितना भी वर्क डन करते हैं उसका केवल हाफ स्टोर होता है and the other half is lost. So what should be the answer? Energy stored is always half of the total work done, so it will be D option, 1/2. Right? Yes, sir. Question number 7. ख्याति,
Chati, Yes, sir. how are you? Fine, sir. Questions हो रहे हैं? Yes, sir. डरो नहीं. कहाँ से हो रहे हैं क्वेश्चन? एसएल अरोड़ा, एनसीईआरटी, डीपीपीज. सर एक तो प्रदीप से और एनसीईआरटी और जो आकाश की मॉड्यूल्स हैं उसमें से. अच्छा, ये डीपीपी बहुत मुश्किल लगती है. नो सर. फिर करने का मन नहीं करता. यस, सर अभी प्रिंट नहीं करी. प्रिंट नहीं करी इसलिए नहीं करता. Very nice. ठीक है, इसको बेटा प्रिंट कर लो. और जब हम एटलीस्ट क्वेश्चन कर चुके होते हैं क्लास में डिस्कस, उसके बाद इन क्वेश्चंस को दोबारा देखना करना बहुत जरूरी है. These are the questions which have been asked in the real exam. Okay, this is again a very good question. ये सब लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे. प्रॉब्लम इसमें क्या है? If you read the question, if you read the question, right? इसमें क्या है? There are three capacitors, but it is initially also having some charge. These capacitors already have some charge. So अगर कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज होगा, जैसे ये थ्री कैपेसिटर्स किस कॉम्बिनेशन में? Are they in series or parallel? They are in series or in parallel? Series. Series, obviously they're going to the same line. So it may seem that they must have same charge, but वो कहानी तभी होती थी when they have the same right. So they have when they do not have any charge. Here it says that there are two capacitors, they are already charged. जो इधर लेफ्ट साइड में है, that capacitor has positive plate on the upward side, so it has, let's say, कितना हुआ चार्ज? ये 3 into 100, 300. ऊपर वाले पे प्लस Q1 चार्ज है, ऊपर प्लस और ये माइनस हो जाएगा. सेकंड वाले में ऊपर वाले में चार्ज है -360, so that is the upper plate has minus Q2 and lower plate has Q2 charge. These two capacitors are initially charged और फिर हमने एक 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के थ्रू इनको आपस में कनेक्ट कर दिया. So because of their initial charges, now that condition won't be true that they are in series, so they must have same charge or something. But yes, their charges will be redistributed, and in the final state, हम Kirchhoff's law लगा सकते हैं. Plus, we can also write the conservation of charge principle. 2 microfarad capacitor, 3 microfarad capacitor. माइनस Q2 ये था इनिशियल. अभी हमने क्या assume कर लिया that after the redistribution of the charges, the final charge on each of these plate इस पे आ गया Q1 dash. क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था तो इन दोनों प्लेट्स पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा. Q1 dash and minus Q1 dash. Here it will become minus Q2 dash and Q2 dash. And this will become Q3 dash. पॉजिटिव के साइड वाले पे पॉजिटिव और नेगेटिव के साइड वाले पे नेगेटिव. This becomes the charge configuration.
So we have to assume a new charge. This is the final charge distribution. अब ये जो final charge distribution है इसकी वजह से now we can write the Kirchhoff law in this system. ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए तो ध्यान से समझना. In this particular loop, now we can apply the Kirchhoff's law. Q1 है, so कितना आएगा Kirchhoff's law minus Q1 dash by 3 plus Q3 dash by 2 minus Q2 dash by 2 is equal to 0. This circuit does not have any battery. This circuit does not have any battery. बेटा ये यहाँ तक क्लियर? क्या किया? Yes, sir. हमने पहले चार्ज अज्यूम करना है, उसके बाद पूरे लूप के लिए किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है. अब वेरिएबल कितने? How many variables are there? 3. Q1 dash, Q2 dash, Q3 dash. और total equation कितनी चाहिए? 3. Now the equation that we can use. सर एक डाउट है बस मुझे. बोलो. सर इसमें आपने नेगेटिव कौन सा है चार्ज, ये कैसे आपने वो चूज करा? देखो ये जो प्लेट में बना रहा हूँ दिस सिस्टम, इस सिस्टम में एक प्लेट A की है और एक प्लेट C की है. सपोज A B है. यस सर. इन दोनों प्लेट में जो चार्ज डिवाइड हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? पॉजिटिव वाला. This positive will be divided positive on the both. So that's why I have taken these two plates to be positively charged because the positive charge is getting divided. समझ गए? समझ गया. What is the total initial charge on this system? क्योंकि इनमें बाहर से कोई चार्ज नहीं आ सकता. यहाँ भी गैप है, इधर भी गैप. इसमें जो भी चार्ज है वो इसका ही चार्ज है तो आपस में redistribute हो. On this system of charge, initially charge was Q1. Finally charge कितना आया? Q1 dash plus Q3 dash. This is what? Conservation of charge for this system. Q1 की वैल्यू पता है? Q1 dash, Q2 dash. Q2 dash और Q3 dash. Similarly on the other side, जो दूसरी तरफ प्लेट है, इस राइट वाली प्लेट को आपस में ले लेते हैं these two plates. इसमें पहले चार्ज था माइनस Q2, अभी चार्ज आ गया माइनस Q3 डैश एंड माइनस Q2 डैश. सो सेकेंड इक्वेशन जो आएगी that will be minus Q2 is equal to minus Q2 dash plus Q3 dash. दोनों नेगेटिव, which means Q2 is Q2 dash plus Q3 dash. Q1 कितना था? CV. Q1 is 300 microcoulomb and Q2 is 360 microcoulomb. इन 3 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके Q1 dash और Q2 dash की वैल्यू निकालेंगे. That's how we solve a general circuit जिसमें पहले से कुछ चार्ज प्रेजेंट है. That's how we find the answer. इसमें सीरीज पैरेलल कुछ नहीं, एक किरचॉफ्स लॉ और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. These two equations we should use. पहली इक्वेशन में हमने पूरे लूप के लिए किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, नेट पोटेंशियल इक्वल टू 0. Second equation, third equation is the conservation of charge for an isolated system of plates. Okay, right. तो questions बाकी वाले आपको करने हैं, बाकी वाले questions आपको करने हैं. Okay, very nice. ठीक है, continue this exercise. DPP बेटा थोड़ा सा अच्छे से कर लो, ऐसा ना होना करती है इसके बाद DPP करना है, especially JI लोग सभी करती. क्योंकि ये DPP ना बहुत ही बिल्कुल सब कुछ निचोड़ के बनाई हुई, सबसे बनाई. Each and every concept is taken care of. इसके बाद कुछ बचेगा नहीं एग्जाम में, आपको कुछ नया ऐसा दिखे. Almost everything concept is there. Okay. ठीक है, तो मेरी तरफ से कंसेप्ट खत्म हो गया. आपने थोड़ा लेट कर दिया, फिर कभी हम इससे करेंगे डाउट्स.
Next Friday we will have the current electricity questions. Okay then. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.